So students, we are going to start studying disorders of circulatory system. Mainly these disorders are related to the heart functioning or the blood supply done by the arteries. तो सबसे पहला disorder है high blood pressure, which we have already discussed in the previous lecture. The normal blood pressure is 120/80. This is systolic blood pressure. This is diastolic blood pressure. If it rises 140/90 or above that, we call it as high blood pressure. It is not good for the vital organs like brain, kidneys and eyes, as we know most of the blood is supplied to these three organs. If the blood pressure increases, more and more blood will be pumped with more pressure to these organs and the capillaries which are supplying blood to these organs. For example, this is a brain to which the capillaries are supplying blood, and due to high blood pressure the capillaries will rupture, that will cause internal bleeding, clot formation and damage to the brain tissues and the cells. Okay, it can also cause different kind of heart diseases also due to more pressure on the walls or on the muscles of the heart. The next is CAD, coronary artery disease. Coronary artery we have studied is the artery that arises from the base of the systemic aorta and supplies oxygenated blood to the heart, right? To the muscles of the heart. Now, so students, due to the substances like calcium, fats, cholesterol or some fibrous tissue. Now let's say this is a coronary artery that is supplying to the blood to the muscles of the heart. Internally the calcium or fat or cholesterol gets deposited to form a plaque. A material which gets stuck to the inner side of the artery. Is it reducing the diameter of this artery? So can it supply sufficient blood to the muscles of the heart? No. Heart muscles will then cannot get enough oxygen. They cannot get enough blood, means they cannot get enough oxygen. Then they cannot do respiration and cannot produce enough energy for contraction and beating of the heart. Are you understanding? Sometimes students, these plaques gets cut off, gets detached and flow in the blood in the form of clots. That will also lead to the various problems. Got it? So, coronary artery disease can lead to chest pain. हार्ट के मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, but still they are trying to contract. Will it cause pressure on them and they'll start paining? That is called as chest pain. Chest pain को ही हम बोलते हैं angina pectoris in a scientific language. Got it? So angina pectoris, chest pain, is most of the times due to acidity also, but sometimes it can be due to this also. अगर बार-बार chest pain feel कर रहे हो, तो there can be a chance that your coronary artery is blocked, is not able to supply sufficient blood and oxygen to the musculature of the heart. Okay, it can also lead to heart attack. So written here, heart attack is only known as myocardial infarction. साइंटिफिक लैंग्वेज में इनको myocardial infarction, angina pectoris ऐसे नाम है. Got it? So myocardial infarction is nothing but heart attack, which is also known as MI, myocardial infarction. It is the sudden death of, क्यों डेथ हो रहे हैं हार्ट मसल की? क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली इट विल die, right? And that happens due to blockage of the coronary artery. So somewhere students, is the CAD responsible for this other circulatory system disorders? CAD is also known as atherosclerosis. Is also known as लेकिन अगर ब्लॉकेज किसी और आर्टरीज में हो रहा है, सी हम सेम यहाँ पे ब्लॉक कौन सी आर्टरी में हुआ है? कोरोनरी आर्टरी में, जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है. बट हमारी बॉडी में और भी तो आर्टरीज है ना, जैसे कि क्रेनियल आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, रीनल आर्टरीज जो किडनी को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं.
अगर बाकी किसी आर्टरीज में ये प्लैक हो रहा है या ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, then it is called as arteriosclerosis. What it is called as? Arteriosclerosis. So when it is blockage in the coronary artery, we call it as atherosclerosis. When it is blockage in other arteries, then it is called arteriosclerosis. समझ में आया? ब्लॉकेज किधर भी हो, is it good for that body organ? वो बॉडी ऑर्गन को इनफ ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा, फिर वो ऑर्गन के सेल्स एंड टिश्यू विल स्टार्ट, अल्टीमेटली द ऑर्गन विल डाई. गॉट इट? द नेक्स्ट डिसऑर्डर, तो हमने यहाँ पे मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड मायोकार्डियल एंजाइना पेक्टोरिस भी कवर कर लिया. नाउ टॉकिंग अबाउट मायोकार्डियल इस्चीमिया. It is nothing but blood flow to the myocardium, that is to the heart muscle, is partially obstructed. Is it again carried? Completely blood flow stop हो रहा है कि partially? Partially. जहाँ पे 50 ml जा रहा था वहाँ पे 20 ml ही जा रहा है because of reduction in the diameter due to formation of plaque. So again it leads to myocardial ischemia. Next is heart failure. Heart fails means heart is unable to pump sufficient blood to the body parts. Every minute, how much blood is pumped out through each ventricle? 5 liter, जिसको हम cardiac output बोलते हैं. तो every minute from both the ventricles, 5 liter blood is pumped out. That pumping action will reduce. That we call. So written here, heart is not pumping blood effectively. It is also called as congestive heart disease because of the congestion in the lungs. Students, we have studied from right ventricle, the pulmonary artery carries blood to lungs. There is exchange of oxygen and carbon dioxide between lungs and the blood, and again the oxygenated blood comes back to the left atrium. But what if the lungs are congested? Means lung alveoli are filled with mucus. You know, बहुत जब what do you say, pneumonia हो जाता है, क्या हो जाता है? तो lungs person is unable to breathe क्योंकि उसके जो alveolar sacs है जिसमें ऑक्सीजन एयर होना चाहिए वो it is filled with mucus. Air doesn't get space there, person doesn't get enough oxygen to breathe. तो जब ये हार्ट का ब्लड लंग के पास जा रहा है तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ही नहीं हो पा रहा है, तो हार्ट पे प्रेशर अल्टीमेटली बढ़ता है. दैट इज कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट डिजीज. सो रीजन इज लंग्स आर कंजेस्टेड, द alveoli are filled with mucus secretion due to some infection, bacterial infection or viral infection. Next is cardiac arrest. It is nothing but heart stops अरेस्ट हो गया, स्टॉप्स बीटिंग. सी स्टेजेस में देखो तो सबसे पहला क्या होगा? CAD. CAD will lead to angina pectoris, that is chest pain, which can be mild to initially mild ही होगा ना क्योंकि ब्लॉक थोड़ा थोड़ा है, वो ब्लॉक बढ़ते जाएगा. इट कैन बी के ब्लॉक कंप्लीटली बढ़ गया और इसने आर्टरी के ब्लड फ्लो को ही स्टॉप कर दिया. स्टॉप कर दिया मतलब देयर इज नो ऑक्सीजन सप्लाइड टू द हार्ट मसल्स एंड द हार्ट मसल विल डाई, दैट इज हार्ट अटैक. हार्ट बीटिंग विल स्टॉप, दैट इज कार्डियक अरेस्ट. समझ में आ रहा है? सो आर दे ऑल समवेयर रिलेटेड टू CAD. तो CAD में जो प्लाक बनता है दैट इज कैल्शियम आयंस, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, फाइबरस टिश्यूज इज डिपॉजिटेड इंटरनली. इसको हमें कंट्रोल में रखना चाहिए ना, रखना चाहिए कि नहीं? सबसे पहला तो वी शुड हैव अ कंट्रोल ऑन ईटिंग फैटी एंड कोलेस्ट्रॉल रिच सब्सटेंसेस. I have seen one doctor's interview. He was an Ayurvedic doctor. So how wrong we start a child's journey. First birthday, बहुत बड़ा केक, 1, 2, 4, 2-3 दिन तक सेलिब्रेशन चलता रहता है. ऑन द फर्स्ट ईयर ऑफ द एज वी आर फीडिंग द चाइल्ड विद द रिच सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल. समवेयर इट गोज ऑन बिल्डिंग अप इन द बॉडी. सी हमारे बॉडी में हजारों आर्टरीज एंड वेन्स है, हर जगह छोटा छोटा प्लाक बनता जाएगा, बट व्हेन इट विल लीड ऑन, इट विल अक्यूमुलेट ऑन
suddenly then something's happening. समझ में आया? So we should have a control on our diet. We should have a healthy and balanced diet, so such things will not lead in our body. अब सबसे लास्ट वाला जो है वो इनसे रिलेटेड नहीं है, CAD से रिलेटेड नहीं है. इट इज रूमेटिक हार्ट डिजीज, जिसको रूमाइटिस हुआ होता है. व्हाट इज रूमाइटिस? संधिवात बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? पता है संधिवात? आर्थराइटिस का टाइप, वन ऑफ द टाइप, जहाँ पे जॉइंट्स पेन होते हैं, स्वेलिंग आता है जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स है, बॉडीली मूवमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है, जिसको भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है. आर्थराइटिस के भी हमने 3 टाइप्स पढ़े लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर में. गाउट आर्थराइटिस पढ़ा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ा और एक और टाइप का आर्थराइटिस पढ़ा था हमने. ओके, तो उसमें से जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसको हुआ है तो उसमें उनको बार बार फीवर आता है, बुखार आता है. एंड ये जो फीवर है, रूमेटॉइड फीवर, दैट डैमेजेस द वैल्व्स ऑफ द हार्ट. Damages the valves. We know valves have very important function to perform. Do the valves, tricuspid as well as bicuspid valve, regulate the one-way flow of the blood. They prevent the backflow of the blood that maintains the pressure on the heart. When the rheumatoid fever damages the valves, they remain continuously open. Then blood can flow downward as well as upward. That somewhere disturbs the blood pressure on the heart. That can also lead to heart arrest or heart attack. समझ में आया? Okay. So these are some of the important disorders related to circulatory system, related to heart. Understood? Any doubt? Okay, see here, stop writing. Now, what is a clot? A coagulated blood. What is a clot? Coagulated blood. That is solidified or jellified blood. You know, normally the blood is fluid, but if it gets thicker, jelly-like, solidified, then it is called a clot or coagulum. Clot or coagulum. How the blood should be? Is it in the fluid form or it should be in the coagulated form? Why? Because it has to circulate to all the body parts where it can do exchange of materials. So, the formation of clots inside the blood vessels is called thrombosis or intravascular clotting of blood. Correct? Inside the vessel, that is intravascular. Arteries, capillaries या वेन्स के अंदर जब ब्लड क्लॉट फॉर्म होते हैं, that process is called thrombosis. Now this thrombus, that means these clots are of 2 types, thrombus clot and embolus clot. You can see from the diagram. It is a clot which remains attached to the inner walls of the blood vessels. But this is the clot which is when formed is freely moving along with the blood, which is more dangerous. This one. Why? Suppose अब ये है आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रहा है. किसको? ब्रेन. तो ये ब्रेन के सेल्स है. क्या है? Cells. That is the neurons of the brain. Will it get divided into capillaries now after reaching here to supply blood to each and every cell? Now this clot when reaches here, will it block the transport of blood? Will it increase pressure? And that can lead to the death. समझ में आया? So ये जो freely moving clots है, that means embolus type के clots है, they can go and clog any important artery, capillary or vein and can result into death, sudden death. समझ में आया? Whereas ये वाला clot जो है, it remains attached at one place, it can only reduce the flow of blood. So it can lead to minor symptoms. अगर वो identified है, treatment देके ये clot क्या किया जा सकता है? Melt किया जा सकता है. समझ में आया? So it can lead to, you know, again suppose it is a coronary artery that is supplying blood to the heart. Is the supply completely stopped due to this clot? Are you understanding? Or the supply, sorry, supply is reduced to the
heart muscles, so heart cannot work efficiently due to less energy production, that can result heart attack. Death of the muscle, not death of the organism. So which is more dangerous type of clot? Embolism. Now, to dissolve this clot, which enzyme is used? Streptokinase. Streptokinase enzyme is the enzyme or chemical obtained from a bacteria, beta hemolytic streptococcus bacteria. ये जो बैक्टीरिया है, ये ना हमने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है. बायोटेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करता रहता है, उसमें से ये रिजल्ट आता है. सो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जब इस बैक्टीरिया को स्टडी किया गया तो साइंटिस्ट फाउंड कि ये बैक्टीरिया एक एंजाइम सिक्रीट करता है. व्हाट इज द नेम? इट इज नथिंग बट अ सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड. अ सिंगल चेन polypeptide enzyme that is called as streptokinase. It has the ability to dissolve the clot. But only it depends on the size of the clot and on the position of the clot. कि ये हम apply कर सकते हैं कि नहीं. Sometimes the clots are very huge sized. ये medicine का dose देने का भी एक limit होता है. Suppose 10 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम तक ही आप दे सकते हो, उससे ज़्यादा दिया तो इट कैन ऑल्सो लीड टू प्रॉब्लम. तो इन सच केसेस ऑपरेशन करके उतना बॉडी पार्ट डिसेक्ट करके वो वेन या आर्टरी में से वो क्लॉट निकला भी जाता है. तो सर्जरी और स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज इज द रेमेडी टू गेट रिड ऑफ द क्लॉट्स. समझ में आया? Now talking about the substances which are called as anticoagulants, which doesn't allow the formation of clot. These are the substances, these are the chemicals which doesn't allow the formation of clots. Is it anticoagulant? Coagulant means clots. बनाना ही नहीं देता. There are some patients who are at the risk of forming clots. तो उनकी body में जो clotting factors है, we have studied clot is formed due to कोएगुलेशन कैस्केड. कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स हमने पढ़े, वो टेबल मैंने दिया 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स. वो क्लॉटिंग फैक्टर्स ऑटो एक्टिव हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? ऑटो एक्टिव. तुम मुझे बताओ कोएगुलेशन कैस्केड एक्टिव कब होता है? आफ्टर इंजुरी टू अ टिश्यू, राइट? बट इट हैपेंस कि वो अपने आप ही एक्टिव हो जाते हैं एंड इंटरनल क्लॉट्स, आइदर एम्बोलस और थ्रोम्बस टाइप के क्लॉट्स बनाना शुरू कर देते हैं. इज इट गुड फॉर दैट पर्सन्स बॉडी? नो. तो ऐसे कंडीशन में ऐसे पेशेंट्स को कुछ मेडिसिन, कुछ एंटीकोएगुलेंट्स दिए जाते हैं. उसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं. सबसे पहले एंटीकोएगुलेंट इज हेपारिन. हेपारिन ये जो एंटीकोएगुलेंट है ये नेचुरली भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है इन द एरियोलार टिश्यूज. व्हिच टिश्यूज? हमने कनेक्टिव टिश्यू के अलग अलग टाइप पढ़े हैं, उसमें से वन ऑफ द टाइप इज areolar tissue. Areolar tissue is made up of 4 type of cells. Made up of, can you tell me? हमने 11th में पढ़ा है. Areolar tissue is made up of 4 type of cells. Fibroblast, ये cells white fibers and yellow fibers produce करते हैं. Adipocytes, mast cell. Very good अथर्व. Mast cells of the areolar tissue produces heparin. तो नेचुरली भी हमारे बॉडी के अंदर हेपारिन है, ऑब्वियसली चाहिए ना, वरना अपने अंदर का ब्लड क्या हो जाएगा? क्लॉट. हेपारिन क्या है? एंटीकोएगुलेंट है. समझ में आ रहा है? तो जब हमारा ब्लड अंदर फ्लो हो रहा है, इट शुड फ्लो इन अ रेगुलर वे. हाँ, अगर कुछ इंजुरी हो गई देन द ब्लड फ्लो शुड बी स्टॉप. तब हेपारिन क्या हो जाता है? डीएक्टिवेट. सो हेपारिन इज स्पेशली गिवन ड्यूरिंग, क्यों? डायलिसिस में हम बॉडी का ब्लड बाहर निकालते हैं. जैसे ही ब्लड बॉडी के बाहर आ गया वो क्या होना शुरू हो जाता है? बट क्या वो ब्लड क्लॉट होना चाहिए कि वो डायलिसिस मशीन में जाके फिल्टर होकर वापस बॉडी में जाना चाहिए? तो ब्लड बॉडी के बाहर आने के बाद उस ब्लड में इमीडिएटली क्या ऐड किया जाता है? हेपारिन, ताकि वो ब्लड लिक्विड स्टेट में रहे, वो ब्लड क्लॉट ना हो, ताकि वो प्रॉपर्ली फिल्टर होके वापस बॉडी में इंजेक्ट किया जा सके. समझे? ऑल्सो ड्यूरिंग व्हाट इज ओपन हार्ट सर्जरी, चेस्ट मसल्स स्किन को कट करके
अंदर हार्ट में कुछ कट करके इंटरनल इंजुरी है, वट एवर द प्रॉब्लम इज, इट इज सॉर्टेड, ऑपरेशन इज डन एंड अगेन द स्टिचेस अगेन। ओपन हार्ट सर्जरी में कितना ब्लड फ्लो होगा, राइट? होगा कि नहीं? तो वहां पे तो ब्लड क्लॉट होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ब्लड के अंदर, सॉरी, हार्ट के अंदर ब्लड शुड बी इन अ रेगुलर फ्लो विदाउट गेटिंग क्लॉट। हम खुद काट रहे हैं ना, तो वो इंजुरी हो गई, एंड इंजुरी होगा तो कोएगुलेशन कैस्केड एक्टिव होगा एंड इधर क्या बनना शुरू हो जाएंगे? क्लॉट्स, व्हिच शुड नॉट बी देयर, वरना उस ऑपरेशन के चक्कर में पेशेंट का बॉडी का ब्लड सो हेपारिन का मेन एक्शन मैकेनिज्म क्या है? हेपारिन इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन व्हिच डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ, हमने पढ़ा प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट्स इनटू थ्रोम्बिन, राइट? सो ये जो थ्रोम्बिन है ये ब्लड क्लॉट करता है, लेकिन थ्रोम्बिन को ही सप्रेस कर दिया तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। फिर ऐसा ब्लड वापस जब बॉडी में डालते तो पहले उसमें से क्या निकाल लेते? हेपारिन। फिर अंदर जाने के बाद भी जिधर जरूरी है वहां पे भी ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ये हमने डायलिसिस में ऑलरेडी पढ़ा। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंटीकोएगुलेंट इज वारफेरिन और इट इज आल्सो कॉल्ड एज कोमैडिन। वारफेरिन और कोमैडिन, ये जो एंटीकोएगुलेंट है इट एक्ट अगेंस्ट विटामिन के। स्टूडेंट्स, इफ यू नो देयर इज अ डिसऑर्डर, आपने 5th चैप्टर में पढ़ा होगा रेगुलर लेक्चर में, हीमोफीलिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर और ब्लीडर्स डिजीज ऐसे बोलते हैं। जिन लोगों की बॉडी में विटामिन के की कमी होती है, हमने टोटल कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स पढ़े? उसमें से 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स आर मेड बिकॉज ऑफ, तो विटामिन के ही नहीं है तो क्या वो 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स बनेंगे? एंड क्लॉटिंग फैक्ट, जब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है सारे के सारे 13 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो 4 नहीं है तो कोएगुलेशन कैस्केड प्रॉपर्ली वर्क नहीं होता एंड ब्लड क्लॉट नहीं होता। समझ में आया? तो वारफेरिन क्या करता है? विटामिन के को ही सप्रेस कर देता है ताकि क्लॉटिंग फैक्टर्स ना बने एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ना हो। EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid, is an anticoagulant which is used in the laboratories. ना हमें ब्लड टेस्ट वगैरह बहुत सारे डिजीज के केस में डॉक्टर बोलता है ब्लड टेस्ट करो, हीमोग्राम चेक करो, राइट? तो हमारा ब्लड जो बॉडी में से निकालते हैं ना सिरिंज में से, तो एक छोटे बॉटल में डाल देते हैं एज अ सैंपल टू टेस्ट इट, टू फाइंड आउट द डिजीज। तो जो बॉटल है वो बॉटल में ऑलरेडी थोड़ा सा क्या होता है, ये एक एंटीकोएगुलेंट है जो लेबोरेटरीज में यूज होता है। समझ में आया? इसके साथ आइदर एडीटी होता है उन बॉटल्स में, और वो बॉटल्स को क्या बोलते हैं? वायल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनमें से छोटा सा बॉटल है, बेस फ्लैट है। तो जो वायल्स है, these वायल्स आर ऑलरेडी फिल्ड विद EDTA और सिट्रेट्स और ऑक्सैलेट्स। तो ये भी एंटीकोएगुलेंट है। जब हम इस बॉटल में अपना ब्लड स्टोर करते हैं तो ये ब्लड क्लॉट नहीं होगा बिकॉज ऑफ दीज एंटीकोएगुलेंट्स। समझ में आया? ये वाले जो दो है सिट्रेट्स एंड ऑक्सैलेट्स नाम के जो एंटीकोएगुलेंट्स है, वो ब्लड में के जो कैल्शियम आयंस है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। And we have studied calcium ions are necessary in intrinsic as well as extrinsic pathway of the coagulation cascade. कैल्शियम आयंस ही नहीं होंगे तो कोएगुलेशन कैस्केड कंप्लीट, ब्लड क्लॉट नहीं। समझ में आया? एनी डाउट टिल हियर? डन राइटिंग? Now the last topic of the lesson, some additional material, some additional knowledge about the circulatory system. तो बाकी सब इजी है, हम रीड करके समझ सकते हैं। 2-4 टॉपिक्स है जो डायग्रामेटिकली समझाने पड़ेंगे। सो उसमें से मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ वेरिकोज वेन। पता है आजकल ये बहुत फेमस है। इट्स अ डिसऑर्डर, नॉट अ डिजीज। इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ स्पेशली द वेन्स ऑफ द लेग्स एंड द थाई, स्पेशली द वेन्स ऑफ द, do you know this? Everyone should know this, especially women should know this.
मेजॉरिटी टाइम्स जो भी घर के काम है, स्पेशली कुकिंग डिपार्टमेंट, किचन डिपार्टमेंट, लॉन्ग टाइम खड़े होके वहाँ पे बहुत कुछ खाना बनाना था, स्पेशली अगर बहुत सारे मेंबर्स है फैमिली में, है ना, 2-3 मेंबर्स है, झट से खाना बन के हो जाता है, आधा पौने घंटे में खाना हो गया, उनको ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना। बट जहाँ पे लार्ज फैमिलीज है, बहुत सारे लोगों का खाना एक साथ बनाना है, वहाँ पे बहुत टाइम ना 2-2.5 घंटे लग जाते हो पूरा कुकिंग कंप्लीट करने। तो रोज इतने घंटे खड़े रहना, it gives pressure on the leg veins, especially I'm telling varicose vein leg vein से ही शुरू होता है, धीरे धीरे पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाए। What is that? It's nothing but swelling of the veins. ये है हमारा थाई, जिसमें है ये सपोज वेन इन अ नॉर्मल कंडीशन, और जिसको वेरिकोज वेन हो गया है उसका वेन ऐसे पॉइंट पॉइंट पे से स्वेल हुआ हुआ दिखे, लिटरली इट इज सीन विद द नेकेड आई, जैसे वो दिख जाता है वो वेन स्वेलिंग हुआ, यू कैन फील इट विद द हैंड, यू कैन लिटरली सी इट। सो धीरे धीरे लेग से शुरू हो गए, आइदर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द थाइज अप टू डाउन और डाउन टू अप। आर यू अंडरस्टैंडिंग? व्हिच इज नॉट गुड एट ऑल। एंड वेरिकोज वेन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज ही यही है, लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग इन वन पोजीशन। वेरिकोज वेन जब इनिशियली शुरू हो रहा है तो उसके लिए रेमेडी सबसे बेस्ट है वॉकिंग। एक जगह पे बहुत टाइम खड़े मत रहो, सपोज कुकिंग भी करो ना, लाइक फॉर एग्जांपल पीलिंग, बहुत सारे काम होते हैं वहाँ पे, तो लेडीज क्या करते हैं, एक ही जगह पे खड़े होके एक हाथ से ये काम करे वो काम करे, बीच में कुछ तो छिलना वगैरह वो सब करे। डोंट स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो भी काम आप बैठ के कर सकते हो करो, बीच बीच में रेस्ट। Those who are working in the companies as a standing job, ना 12-12 घंटे की ड्यूटीज करते हैं लोग लाइन पे। Even teachers, many teachers are suffering this problem nowadays. Now being a science teacher I know it, so that is why we need to, ना पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा वॉक कर लो, so that जो वेन्स पे प्रेशर आ रहा है एक ही जगह पे खड़े होकर लॉन्ग टाइम पे वो नहीं आएगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? So if your parents, your एक्विंटेंसेस, आप लोगों को जिनको जानते हो जो ऐसे खड़े रह के बहुत घंटे तक काम करते हैं, यू नीड टू टेल देम कि खड़े रह के काम करना ठीक है, बीच बीच में लेग एक्सरसाइज करो, थोड़ा लेग्स को मूव करो, एक ही पोजीशन में बहुत देर तक खड़े मत। समझ में आया? नेक्स्ट इज अन्यूरिज्म। ये अपना नॉर्मल आर्टरी और वेन, it gets bulged out. It gets bulged out. Balloon-like structure. That is called aneurysm. तो ब्लड तो फ्लो हो रहा है, बीच में से इधर भी जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज है। इसका मेन प्रॉब्लम क्या है? सपोज ये हैंड में इस वेसल के लिए एक स्पेसिफिक पोजीशन दे के रखिए, वॉल्यूम दे के रखा, वो अचानक से एन्यूरिज्म करेगा तो आजू बाजू वाले जो वेन्स है, आर्टरीज, उनको क्या करेगा? प्रेस करेगा, and that will cause the problem in conduction of electric impulse, and it will affect taking decision with that body, movement of that body. समझ में आया? बाकी के आजू बाजू वाले वेन्स, नर्व जो उसके अंदर दब जाएंगे, got it? That is called aneurysm. आगे है CPR। ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये एक रेमेडी है, फर्स्ट एड है, कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूसिएशन। Cardiopulmonary rescue, to save, rescuation. If someone gets drowned in the water, पानी में डूब गया तो उसके lungs वगैरह are get filled with water, तो जैसे उसको बाहर निकालते पहले पेट पे, चेस्ट पे प्रेशर देते ताकि वो वाटर बाहर आ जाए। फिर भी if the person is unconscious, unable to breathe, तो क्या करना है? उसको CPR देना है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दो 3 times, and then 3 times chest पे with both the pumps pressure दो, suitable pressure, उसके बैठ के जोर जोर से। it should be a छोटा बेबी है तो उसका प्रेशर कम होना चाहिए, थोड़ा हेल्दी हट्टा कट्टा उसका प्रेशर थोड़ा ज्यादा, so that technique we should have। CPR कोई भी उठ के नहीं कर सकता। ये चीज 15 times alternately करनी। कितना टाइम्स? 15 times, 1 time mouth to mouth respiration, 3 times CPR, 1 time mouth to mouth respiration, 3 times CPR। ऐसे कितने बार alternately करना है? That may improve the working of the heart and the functioning of the lungs
and the person can get conscious again. समझ में आया? Okay. So these are some of the things related to additional knowledge about the circulatory system disorder. उसके बाद arrhythmia भी होता है. What is arrhythmia? Heart beats in rhythm. Arrhythmia means heart doesn't beat in rhythm. Contract, relax, contract, relax. Yes, that is called fibrillation. What it is called? Fibrillation. Or quiver. Or heart contract, relax, contract, vibrate होता है. Completely contract नहीं हो पा रहा है, completely relax नहीं हो पा रहा है, अपनी जगह पे vibrate हो रहा है. That is called fibrillation or quiver. Is it good? Will it affect the circulation of blood, pumping of blood? समझ में आ रहा है? फिर हमने ऑलरेडी एक बार पढ़ा है ब्लू बेबी सिंड्रोम. What is the hole in the interatrial septum called as during embryonic stage? Foramen ovale. Immediately after birth, that hole gets degenerated. Only its impression remains. As a mark रहते थे holes, and that is then called as fossa ovalis. But in some children, by birth, that hole doesn't get degenerated. It remains. तो फिर उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो राइज है मिक्स्ड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट्स मिक्स्ड एंड दैट इज सप्लाइड टू द बॉडी. इसलिए वो बेबी के लिप्स, नेल्स, आईज एंड स्किन थोड़ा सा ब्लूइश दिखता है. सो इट इज कॉल्ड एज ब्लू बेबी सिंड्रोम. समझ में आया? व्हाट इज टैकीकार्डिया एंड ब्रैडीकार्डिया? कम ऑन स्टूडेंट्स, हाँ ये सब हमने पढ़ा रेगुलर लेक्चर में. इंक्रीज्ड हार्ट बीट इज ब्रैडीकार्डिया, डिक्रीज्ड हार्ट बीट इज टैकीकार्डिया. करेक्ट? Those are online, tell me fast. If the heartbeats are less than 60, normal कितना होता है? 72 per minute. But if it is less than 60, it is called tachycardia or bradycardia. Those are online. ठीक है. So what is tachycardia? When the heartbeat rate increases more than 100. Normal कितना? 72 होता है. It goes more than 100, then it is called tachycardia. And when the heartbeat rate is less than 50 or 60, less than 50 or 60 heartbeats per minute, then it is called as bradycardia. Are these both good? No, it cannot maintain the proper circulation of blood to the body parts. When a person is doing vigorous exercise, that time there is a बहुत रनिंग कर रहे हो, हेवी वर्क कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली हार्टबीट इंक्रीजेस, बट दैट इज टेम्पररी, नॉट परमानेंट. तो उसको हम टैकीकार्डिया नहीं बोलते. टैकीकार्डिया एंड ब्रैडीकार्डिया द परमानेंट कंडीशन, सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स और डिजीजेस इन द हार्ट. व्हाट इट? सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो भी है हमने पढ़ा था ये मायोजेनिक हार्ट एंड न्यूरोजेनिक हार्ट. न्यूरोजेनिक हार्ट इज द हार्ट whose beating impulse is sent from the brain, and myogenic heart is our heart where the impulse for contraction is generated by the special muscles of the heart, that is SA node pacemaker, right? So I can say that we are done with this chapter. इसके अलावा भी कुछ एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, वो मैं डायरेक्टली फोटो ग्रुप पे शेयर कर दूंगी. यू रीड इट, यू विल अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग इट. तो जो एडिशनल मटेरियल है, I want you to write down in your notebook. Okay?